how a contract is formed. How is it formed? What do you think is the foundation stone? Offer or proposal. So it always starts with an offer or proposal. क्या होता है offer और proposal? Generally, what do you mean by a proposal or an offer? Offering something. That means, सुना है सबने ये term offer. Offer means in general terms, offer क्या होता है? It means a willingness. Okay. When I want some person to do something. और जब मैं अपनी ये willingness किसी सामने वाले person को communicate करूंगी, वो है offer. For example, if I am willing to sell my car. All right. So there is a person जिसको मुझे अपनी कार sell करनी है. I have a willingness to sell my car. Also, I have a willingness that this person should purchase my car. This is my willingness. So whenever I express my willingness to any person, it means I am making an offer. समझ आ रहा है? Generally, अभी ऑफर क्या होता है इसका पूरा टेक्निकलिटीज हमें देखनी है. Read with section 2 clause A, but generally offer means when you express your willingness. And what kind of willingness? That you have a willingness to do or some other person should do something, that willingness. My willingness is that I want to sell my car. Along with that, I also have a willingness that the person should purchase my car. So when I express such a willingness, it generally means an offer. I am making an offer. सबसे पहले कहीं से तो शुरुआत होती है ना. So the foundation stone of a contract is an offer. Offer के बाद क्या होता है? उस offer को या तो accept किया जाएगा या reject किया जाएगा. अगर reject कर दिया तो it comes to an end. Yes or no? वो वहीं terminate हो जाएगा. It comes to an end. But हमें पूरा procedure पढ़ना है. So let's suppose कि एक proposal हुआ. Proposal is accepted or the acceptance is given to the proposal. So the proposal or offer means expressing your willingness. Whenever you express a particular kind of willingness, it is known as an offer. It is known as a proposal. And when your willingness, your offer is accepted by the other person, then such an expression is known as acceptance. उस expression को, वो expression ही तो है ना. मैंने एक person को बोला I am willing to sell my red car to you for rupees 1 lakh. For example, this is my willingness. I am expressing my willingness in the form of an offer. अब सामने वाला person क्या करेगा? अगर उसको एक्सेप्ट करना है तो क्या वो अपने मन में सोच लेगा कि हाँ मुझे ये ऑफर एक्सेप्ट करना है, बस मैंने सोच लिया, काम चल जाएगा इतने से? इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड. जैसे ऑफरर ने, मैंने अपनी विलिंगनेस, माई विलिंगनेस टू सेल माई कार, माई विलिंगनेस दैट द पर्सन शुड परचेज माई कार, whenever I express my willingness, such an expression is known as offer. Similarly, when my offer is to be accepted, it has to be in the form of an expression. Yes or no? So whenever the person to whom the offer is made also communicates his expression, also expresses his willingness to give assent to my proposal. जब सामने वाला person जिसको मैंने ऑफर किया है वो एक्सप्रेस करेगा, what he is expressing his willingness, his assent, his consent, his acceptance to my offer,
It is the second stage known as acceptance. Firstly, acceptance. So the first stage is proposal. The second stage is acceptance. General अभी हम पढ़ रहे हैं. Acceptance का मतलब बहुत wide है. Proposal का मतलब बहुत wide है. Proposal has been defined under 2 clause A of the Indian Contract Act. Acceptance has been defined under 2 clause B of the Indian Contract Act, but they are not limited to 2A and 2B. उनके साथ बहुत सारे provisions, बहुत सारे principles हम interlink करेंगे. But अभी general is first stage is proposal. Proposal is also known as the stepping stone or the foundation stone of the entire contract. It is basically the stepping stone or the foundation because यहीं से contract start हो रहा है. And when the offer is accepted, it becomes promise. Promise means? What do you mean by promise? When the other person gives his assent, so जब एक proposal, एक offer accept हो जाता है, तो वो एक promise बन जाता है. Basically difference क्या हुआ कि जब हम proposal और acceptance की बात करें, हम one sided perspective से देख रहे हैं. Proposal एक person कर रहा है, acceptance दूसरा person दे रहा है. So it is basically one person thing. लेकिन जब एक person का proposal दूसरे person के acceptance से मिल जाता है, it becomes a two-way thing known as promise. Promise generally involves 2 persons. एक person दूसरे person से promise करता है, in return सामने वाला person भी कुछ promise कर रहा है. इसीलिए आप generally Indian Contract Act में promise word के साथ साथ पढ़ते हो reciprocal promise. What do you mean by reciprocal? Reciprocal मतलब a set of promise, not just one way. क्योंकि अगर मैंने for example I promised a person to sell my red car to him, is that sufficient for a contract? He has to make a promise in return. So that person is making a promise in return that for purchasing my red car, that person will be paying 1 lakh rupees. मेरा promise to supply my red car, to sell my red car. सामने वाले person का promise to pay the price in return. Exchange of promises known as reciprocal promises. समझ आ रहा है? Clear है? And that is why in Indian Contract Act, whenever we use the word promise, it impliedly means we are referring to 2 or more persons, because 2 or more persons के जब promises exchange होंगे तभी वो reciprocal promise कहलाएगा. इसीलिए जब आप consideration भी पढ़ते हो तो पढ़ते ना हम quid pro quo, सुना है कभी? जब आप consideration पढ़ोगे, जब मैं आपको consideration पढ़ाऊंगी, it is basically based upon the maxim quid pro quo, which means something in return of something. Consideration का मतलब क्या होता है? Something in return of something. कार के बदले पैसे, पैसे के बदले कार. Consideration. Why? Because promises are always, in Indian Contract Act, we are always referring to reciprocal or set of promises. इसीलिए जब आप 2 clause C देखते हो तो वहां पे promiser और promisee को डिफाइन किया गया है. समझ आ रहा है? जब मैंने प्रॉमिस किया उस पर्सन को टू सेल माई रेड कार, आई एम द प्रॉमिसर, ही इज द प्रॉमिसी. एंड व्हेन ही इज मेकिंग इन रिटर्न अनदर प्रॉमिस टू पे 1 लाख रुपीज फॉर माई रेड कार, ही बिकम्स द प्रॉमिसर, आई बिकम द प्रॉमिसी. और इन दोनों प्रॉमिसेस को हम कलेक्टिवली बोलेंगे रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस, बिकॉज दे आर एक्टिंग एज कंसिडरेशंस फॉर ईच अदर. समझ आ रहा है? So जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होता है, it always starts with a proposal. The proposal when accepted becomes a promise. If the proposal is rejected, क्या promise बन जाएगा? No. It comes to an end there and then.
But if the proposal is accepted, it becomes a promise. The word promise, has it been defined under the Indian Contract Act? क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिफाइन किया गया है? क्या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस को डिफाइन किया गया है? यस, इन सेक्शन 2 क्लॉज F, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस. क्या प्रॉमिस वर्ड को डिफाइन किया गया है? यस, इन 2 क्लॉज B. 2 क्लॉज B जहां पे एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन दी गई है, उसी के साथ साथ डिफाइन किया गया है अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस. इसीलिए जब हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये चार्ट बनाते हैं तो प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, बिकॉज दिस हैज बीन गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज B. मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये चार्ट जो हम कॉलेज टाइम से देखते हुए आ रहे हैं, हमें इसके जस्टिफिकेशंस देखने, दैट व्हाई दिस चार्ट is in this form. Why we always write acceptance, a proposal plus acceptance is promise, because it has been stated in section 2 clause B. 2 clause A जहां पे proposal को define किया गया है, 2 clause B जहां पे acceptance को define किया गया है, वहीं पे बोला गया है कि जब एक proposal accept हो जाता है, it becomes a promise. And section 2 clause F defines reciprocal promises. That is why we always write proposal plus acceptance is equals to promise. This is given under 2 clause B. समझ आया? अब reciprocal promises की भी definition देख लेते हैं एक बार. 2 clause F पे आएंगे, क्या बोला गया है? Exactly वही चीज जो अभी हमने समझी. 2 clause F, promises means more than one. इसीलिए मैंने आपको बताया, जब भी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे वहां पे प्रॉमिस इज ऑलवेज इन सेट. इन सेट मीन्स देर आर promises in return of other promise, promise in return of promise, based upon the maxim of quid pro quo, something in return of something. क्या बोला गया है? Promises, that means एक से ज्यादा है, which form the consideration. मैंने अभी आपको बताया quid pro quo, something in return of something. So अगर मैंने एक person को बोला that I am willing to sell my red car, I promise to sell my red car to you for rupees 1 lakh. I am the promiser, he is the promisee. In return, he makes another promise to me that I promise to pay rupees 1 lakh for your red car. He is the promiser, I am the promisee, और इस पूरे सेट को हम क्या बोलेंगे? रेसिप्रोकल प्रॉमिस. क्या कोई भी दो रैंडम प्रोमिसेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहलाएंगे? नो. Promises will be known as reciprocal promises only when they form consideration for each other. That means, why am I giving my red car to that person? Only because in return he is giving me 1 lakh rupees. Why is that person paying 1 lakh rupees? क्या वो मुझे randomly 1 lakh rupees दे रहा है कि पहले का कोई डेट है तो ये लो 1 लाख रुपए? क्या ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस होगा? No. He is giving me 1 lakh rupees. Why? Because I have made a promise to sell my red car in return of 1 lakh rupees. Reciprocal promises. एक individual promise means proposal plus acceptance is promise. But कोई भी set of promises as per 2 clause F reciprocal promises तभी कहलाएंगे when the promiser and promisee, basically when two promises are acting as considerations for each other. रेड कार का प्रॉमिस क्यों किया गया है? क्योंकि 1 लाख रुपीस का प्रॉमिस सामने से आया. 1 लाख रुपीस का प्रॉमिस क्यों किया गया है? क्योंकि रेड कार बेचने का प्रॉमिस सामने से आया है, एक्टिंग एज कंसीडरेशन फॉर ईच अदर. सो ओनली दोस के कोई भी रैंडम प्रोमिसेस को हम रेसिप्रोकल प्रोमिसेस नहीं बोलेंगे.
A set of promises will be known as reciprocal promise as per section 2 clause F only when they form consideration or at least a part of consideration for each other. Part of consideration means, for example, मैंने बोला कि मुझे अपनी रेड कार आपको बेचनी है for ₹1 lakh. सामने वाले पर्सन ने भी प्रॉमिस किया, I will purchase your red car for ₹1 lakh. 50,000 rupees I will pay by cash. 50,000 rupees I will pay by check. So जो कैश दिया जा रहा है वो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है, और जो चेक दिया जा रहा है वो भी पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है. और ये सारे के सारे आपस में रेसिप्रोकल प्रोमिसेस क्यों है? बिकॉज दे आर बीइंग गिवन, दे आर बीइंग मेड इन रिटर्न ऑफ ईच अदर, ऑन फेथ ऑफ ईच अदर. That is why they are known as reciprocal promise, one in return of the other. Any promise which is randomly being made is not a reciprocal promise. A promise will be known as a reciprocal promise only when it is in return of another promise. That means it is acting as a consideration or at least a part of consideration. कि या तो पूरा कंसिडरेशन हो या एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन की 50,000 रुपए भी जो पे किए या जो पे करने का प्रॉमिस किया है वो पार्ट ऑफ कंसिडरेशन है. द एंटायर कंसिडरेशन इज 1 लाख. 50,000 रुपीज पे करने का, कैश पे करने का जो प्रॉमिस है, इट इज ऑल्सो कंसिडरेशन बट अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन. So a promise or set of promises will be known as reciprocal promises only when they act as considerations for each other. When one promise is made in consideration का मतलब हमेशा क्या होता है? in return. तभी तो हम बोलते हैं ना, the concept of consideration is based upon the principle of quid pro quo. क्विड प्रो क्वो का मतलब ही होता है समथिंग इन रिटर्न ऑफ समथिंग. कि मैं आपको रैंडमली अपनी रेड कार नहीं दे रही हूं, मैं आपको अपनी रेड कार दे रही हूं बिकॉज इन रिटर्न यू आर गिविंग मी 1 लाख रुपीज. सामने वाला पर्सन रैंडमली आपको 1 लाख रुपीज नहीं दे रहा है. ही इज गिविंग 1 लाख रुपीज बिकॉज यू आर सप्लाइंग, यू आर सेलिंग योर रेड कार इन रिटर्न. तो कंसिडरेशन इज ऑलवेज इन रिटर्न, म्यूचुअल, क्विड प्रो क्वो. द सेम लॉजिक लाइज इन रेसिप्रोकल प्रोमिसेस because a set of promise will be known as reciprocal promise only when they are acting as consideration or part of consideration for each other in return. Quid pro quo. Something in return of something. समझ आ रहा है? क्या लिखा है? Promises which form the consideration or part of consideration for each other are called reciprocal promises. तो हमें पता चल गया कि अगर प्रपोजल की बात करें तो सेक्शन 2 क्लॉज ए में डिफाइन किया गया. एक्सेप्टेंस की बात करें तो 2 क्लॉज बी में डिफाइन किया गया. इजीएस्ट वे टू रिमेंबर द क्लॉज नंबर्स ऑफ डिफरेंट डेफिनेशंस. अगर प्रॉमिस की बात की जाए तो अ जनरल प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज बी बट रेसिप्रोकल प्रॉमिस हैज बीन डिफाइंड अंडर 2 क्लॉज एफ. यहां तक समझ आया? अब क्या मियर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा? यहां मैं लिख दूं इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट. प्रॉमिसेस तो बहुत होते हैं ना, बट क्या हर प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट होता है? नो. बिकॉज प्रॉमिस, अभी तक हमने क्या देखा है? प्रॉमिस का मतलब है प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस. दैट मीन्स मियर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स. यही होता है प्रॉमिस का मतलब. एक प्रॉमिस एक फॉर्मल टर्म है, इनफॉर्मल टर्म है? इनफॉर्मल टर्म. Because a promise is generally exchange of words. अभी तक कार दी नहीं है, अभी तक 1 लाख रुपीज दिए नहीं है, सिर्फ प्रॉमिस किया है कि मेरा ऑफर है कि आप मुझे 1 लाख रुपीज दो, आई विल सेल माई कार टू यू. सामने वाले पर्सन ने प्रॉमिस, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशन किया है दैट आई विल पे यू 1 लाख रुपीज व्हेन यू गिव मी योर रेड कार इन रिटर्न. एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स, प्रॉमिस. बट जब हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो एक फॉर्मल टर्म है. यस और नो? एज कंपेयर टू प्रॉमिस, कौन सा ज्यादा फॉर्मल टर्म है, प्रॉमिस या कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स बाइंडिंगनेस, अ सेंस ऑफ बाइंडिंगनेस. कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग होते हैं. यस. क्या हर प्रॉमिस बाइंडिंग होगा? नहीं.
मैंने आपको बोला कि अगर कल आप लोग 50 MCQs सॉल्व करके आए, आई विल टेक यू आउट फॉर अ मूवी. इन रिटर्न आप लोग 60-70 MCQs करके आए और कल कह रहे हो मैम अब क्लास तो आज होगी नहीं, हमने देख लिया है तो शो तो है, चलो. आई रिफ्यूज. नो, आई विल नॉट टेक. बैठो यहीं पे, क्लास करेंगे. आप लोग मुझे स्यू कर सकते हो. वाई? प्रॉमिस हुआ ना, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया और उसी के रिटर्न में क्या आप रैंडमली 70 MCQs करके आए? नो. ऑन द फेथ ऑफ माई प्रॉमिस यू अटेम्प्टेड 70 MCQs. बट क्या हर प्रॉमिस लीगली बाइंडिंग होता है? नहीं, ये एक इनफॉर्मल नेचर का प्रॉमिस है. एवरी प्रॉमिस कैनॉट रिजल्ट इनटू अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट. देयर आर सर्टेन अदर एसेंशियल्स ऑल्सो जो इसमें ऐड करने पड़ेंगे इसको फाइनली एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए. समझ आ रहा है? सबसे पहली चीज, प्रॉमिस बीइंग मियर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स. एक मियर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स. हम जब ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि बोली हुई बात पे कोई बिलीव नहीं करता है, लेकिन अगर उसी में कोई मॉनेटरी वैल्यू ऐड कर दी जाए तो हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करते हैं. यस और नो? अगर एक जनरल बात बोली गई है, प्रॉमिस किया गया है कि भाई मैं आपको कार सेल करूंगी, बदले में आप मुझे प्राइस पे करोगे. कोई मॉनेटरी वैल्यू हमने ऐड नहीं करी है, बट ये प्रॉमिस है. मैं प्रॉमिस कर रही हूं दैट आई विल बी सेलिंग माई कार टू यू. You are promising that I will be paying something in return. This is a promise. But as per the human tendency, promises being mere exchange of words are not taken seriously. The persons involved in those promises, they don't feel responsible enough until a monetary value is attached to those promises, जिसको बोला जाता है कंसिडरेशन. समझ आ रहा है? प्रॉमिस का भी तो मतलब यही है ना कि वो प्रोमिसेस, रेसिप्रोकल प्रोमिसेस तभी होंगे जब वो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन की तरह एक्ट कर रहे हैं. तो एक रियल कंसीडरेशन ऐड होना जरूरी है ना. सिर्फ प्रॉमिस किया है आई विल सेल माई कार, इन रिटर्न यू विल पे द प्राइस. सामने वाले ने भी प्रॉमिस कर दिया ओके यू सेल योर कार, I will pay the price. Mere exchange of words, not binding at all. We have to add certain monetary value. आगे जाके जब breach of contract होगा और damages calculate करने की बात आएगी, तो अगर कोई monetary valuation ही नहीं है, how will the damages be calculated? So for that purpose, consideration is also one of the most essential element in any contract defined under section 2 clause D. पढ़ते हैं ना हम, कंसिडरेशन हैज टू बी रियल. पढ़ते हैं द कंसिडरेशन हैज टू बी रियल. आप जब कंसिडरेशन में आपको कंसिडरेशन पढ़ाऊंगी तो कंसिडरेशन का एक एसेंशियल एलिमेंट होता है दैट द कंसिडरेशन हैज टू बी रियल. रियल मींस समथिंग मटेरियल, एज इन वो कुछ भी हो सकता है. जरूरी नहीं है हमेशा मनी ही कंसिडरेशन हो. कंसिडरेशन कुछ भी हो सकता है, इवन सर्विसेज भी हो सकती है, बट रियल होना चाहिए. समथिंग शुड बी देयर, उसको बोला जाएगा कंसिडरेशन. अभी तक प्रॉमिस था और वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस थे, बट जब उसमें हम एक रियल कंसिडरेशन ऐड कर देंगे तब हम थोड़ा थोड़ा एक लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट के टुवर्ड्स मूव कर रहे हैं. इसीलिए जब भी प्रॉमिस के अंदर एक रियल कंसिडरेशन, प्रॉमिस जो अभी तक मियर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स था, उसमें जब हमने एक मॉनेटरी वैल्यू कंसिडरेशन, एक रियल कंसिडरेशन ऐड की, इट बिकम्स एन अग्रीमेंट. अभी तक जब तक बात सिर्फ ऑफर और एक्सेप्टेंस की थी, मियर एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशंस, मियर एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स और मियर एक्सचेंज ऑफ विलिंगनेस की थी, हमने बोला वो सिर्फ एक प्रॉमिस है. लेकिन अब उस प्रॉमिस में एक मॉनेटरी वैल्यू ऐड हो चुकी है. सो द प्रॉमिस बिकम्स अ मोर फॉर्मल थिंग, दैट इज अग्रीमेंट. प्रॉमिस फॉर्मल है या अग्रीमेंट फॉर्मल है? अग्रीमेंट फॉर्मल है. तो जैसे ही हमने उस प्रॉमिस में अभी तक जो सिर्फ रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस थे, मियर एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशंस,
जब उसमें हम रियल कंसिडरेशन एज पर सेक्शन 2 क्लॉज डी ऐड करते हैं, वी कम क्लोजर टू अ फाइनल कॉन्ट्रैक्ट. दिस स्टेज इज नोन एज अग्रीमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2E. अब आप सोचोगे कि मैम कंसीडरेशन ही हमें प्रॉमिस में ऐड करना है. जो चार्ट में हमने अभी लिखा कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट. हाउ डू वी नो, जो हमें कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है या जो बुक्स में भी लिखा जाता है, ये पूरा चार्ट बना मिलेगा आपको बहुत सारे कमेंट्रीज में. हाउ डू वी नो कि प्रॉमिस में ही कंसीडरेशन ऐड किया जाएगा तो अग्रीमेंट मिलेगा? कैसे पता लगा हमें? बेयर एक्ट से. बिकॉज 2D डिफाइंस द टर्म कंसीडरेशन. इसकी डेफिनेशन हम इस कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे, बट अभी के लिए हमें क्या देखना है? देखो क्या लिखा है, इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस. इज कॉल्ड कंसीडरेशन नहीं, इज कॉल्ड कंसीडरेशन फॉर प्रॉमिस. दैट मीन्स प्रॉमिस के बाद कंसीडरेशन ऐड करना पड़ेगा, तभी अग्रीमेंट बनेगा. बिकॉज अ प्रॉमिस और रेसिप्रोकल promises, even though they are given in return of each other but no actual real monetary value has been added, they are mere expressions. उसमें जब हम 2D के अकॉर्डिंग प्रॉमिस के अंदर जब हम कंसीडरेशन ऐड करेंगे, तब जाके हमारे पास सेक्शन 2 क्लॉज E का अग्रीमेंट आएगा. मैंने आपको बताया था, पूरे चार्ट को मैं आपको जस्टिफाई करूंगी कि क्यों प्रॉमिस में कंसीडरेशन, ये सब बता देते हैं कि प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड करोगे तो अग्रीमेंट मिलेगा. बट व्हाई? बिकॉज लेजिस्लेचर ने लिखा है 2D के अंदर दैट कंसीडरेशन इज ऑलवेज फॉर अ प्रॉमिस. कंसीडरेशन कैन नॉट बी रैंडम. कंसीडरेशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट इज ऑलवेज फॉर अ सेट ऑफ प्रॉमिस. इसीलिए रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस तभी कहलाएंगे जब वो एक दूसरे के लिए कंसीडरेशन है. इसीलिए कंसीडरेशन इज ऑलवेज फॉर दी प्रॉमिस. प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू एन अग्रीमेंट. अब आते हैं अग्रीमेंट पे. अब हमें कैसे पता लगा कि प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल्स टू अग्रीमेंट? 2E के अकॉर्डिंग. बिकॉज 2E क्लैरिफाइज एवरी प्रॉमिस और एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस. सेट ऑफ प्रोमिसेस मीन्स reciprocal promises. Every promise and every set of reciprocal promises forming consideration for each other is an agreement. That means every promise and every reciprocal promise ये 2B है. Every promise or every set of promise, that means reciprocal promise, which form consideration for each other is an agreement. Consideration is always for a promise. All right? अगर मैं promise कर रही हूं कि I will sell my red car to you, तो मेरी तरफ से consideration क्या हुआ? Red car. सामने वाला पर्सन रेसिप्रोकल प्रॉमिस कर रहा है दैट ही विल पे 1 लाख रुपीज इन रिटर्न, तो व्हाट इज द कंसीडरेशन फ्रॉम हिज साइड? 1 लाख रुपीज. सो मेरी साइड से प्रॉमिस इज टू सेल माय रेड कार एंड दैट इज द कंसीडरेशन ऑल्सो. उसकी साइड से प्रॉमिस इज टू पे रुपीज 1 लाख, दैट इज द कंसीडरेशन. सो कंसीडरेशन इज ऑलवेज फॉर अ प्रॉमिस, and those reciprocal promises which are considerations for each other combine करके they result into an agreement. कि जब हमने promise या set of promises में consideration add किया, कि mere exchange of words में जब हमने actual consideration उन्हीं promises में add किए हैं, तो वो promise ही ना. क्या consideration add करने से promise दूसरा हो गया क्या? promise तो एक ही है ना. मेरी साइड से एक प्रॉमिस है दैट आई एम सेलिंग माय रेड कार, वो प्रॉमिस भी है और वो कंसीडरेशन भी है. प्रॉमिस क्यों है? क्योंकि वो एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है इन रिटर्न ऑफ द ऑपोजिट प्रॉमिस. कंसीडरेशन क्यों है? बिकॉज कार अमाउंट्स टू अ रियल कंसीडरेशन. सामने वाले पर्सन की तरफ से प्रॉमिस क्या है?
to pay rupees 1 lakh. That is a promise, and it is also a consideration as per 2D because a real material thing is involved, that is rupees 1 lakh. तो जब भी रेसिप्रोकल प्रोमिसेस में मटीरियलिटी या रियल कंसीडरेशन ऐड हो जाता है तो उसको कंबाइन करके हमारे पास आता है 2E का अग्रीमेंट. दैट इज व्हाई एज पर सेक्शन 2 क्लॉज E, every promise or set of promises forming consideration for each other is an agreement. अब हमें पहुंचना कहां तक है? कॉन्ट्रैक्ट तक. हम अभी कहां आए हैं? अग्रीमेंट पे. और हमने पहले भी पढ़ा होगा, ये बहुत ही कॉमन सा स्टेटमेंट है दैट एवरी अग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. मैं इसके लैटर पार्ट पे फोकस करती हूं. एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, ये स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट कहलाने के लिए आपको एक अग्रीमेंट तो होना ही पड़ेगा. यस और नो? एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. दैट मीन्स टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट यू शुड फर्स्ट बिकम एन अग्रीमेंट. तो अग्रीमेंट तो बन गया. अब कॉन्ट्रैक्ट तक जाने के लिए हमें पता है इसमें हमें कुछ ऐसी चीज ऐड करनी पड़ेगी बाय विच वी विल बी रीचिंग द फाइनल डेस्टिनेशन, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट शुड बी एट? enforceability. How do we know that agreement plus enforceability amounts to finally the contract? कैसे पता हमें? 2 clause H, जहां पे कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है एज एन अग्रीमेंट. सबसे पहले तो डेफिनेशन में सबसे पहले क्या लिखा है? एन अग्रीमेंट. मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एक अग्रीमेंट तो होना जरूरी है. और अग्रीमेंट होने के लिए क्या जरूरी है? प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस, कंसीडरेशन. यस और नो? एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए इट हैज टू बी एन अग्रीमेंट फर्स्ट. दैट इज व्हाई द स्टेटमेंट इज एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. सो एवरी अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. दैट मीन्स एवरी अग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल is contract. What do you mean by enforceable? Enforceable means, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको, उसी से समझ आ जाएगा. जो मैंने अभी आपको मूवी वाला एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको पूछा कि कैन यू sue me for that? You said no. Why? Because even though it is a promise, उसमें कंसीडरेशन भी है. कंसीडरेशन क्या है? मेरी तरफ से अ मूवी, आपकी तरफ से प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज. कंसीडरेशन के लिए मैंने बताया कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है मनी होना चाहिए, बट इट हैज टू बी समथिंग रियल. रियल मीन समथिंग इन एग्जिस्टेंस. सो इवन दिस इज अ कंसीडरेशन कि मेरी तरफ से इफ आई टेक यू आउट फॉर मूवी, इट इज अ कंसीडरेशन. If you are in return, you are practicing 70 MCQs and then coming to the class, it is a consideration. But still it is not a contract. वो agreement तो है, but वो contract नहीं है. क्यों? Agreement क्यों है? क्योंकि उसमें offer था, acceptance था, consideration था, तो वो agreement तो बन गया. But contract नहीं है. Contract नहीं है, क्यों? क्योंकि आपने बोला you cannot sue me. That means such an agreement is not legally enforceable, because all the agreements which are legally enforceable, only those agreements are known as contract. और legally enforceable का mean कि you can sue for that breach. breach ही किया ना आप आए क्लास में 70 MCQs करके, आपने बोला मूवी मैम, मैंने मना कर दिया, I refused. That means I committed breach. Yes or no? बट उस ब्रीच के लिए आप मुझे एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्यू नहीं कर सकते. यू कैन नॉट एनफोर्स सच ब्रीच. व्हाई? बिकॉज दैट अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट.
इट इज एन इनफॉर्मल अग्रीमेंट, और ऐसे अग्रीमेंट्स को बोला जाता है सोशल अग्रीमेंट्स. दैट मीन्स एन अग्रीमेंट out of social relationship without an intention of lawful enforcement. जब मैंने आपको प्रॉमिस किया और जब आपने मुझे प्रॉमिस किया, हमारी कहीं भी इंटेंशन या ये जो नेचर ऑफ हमारे रिलेशनशिप है, इसमें कहीं पे भी देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. तो जब तक एक लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, जैसे फॉर एग्जांपल बायर और सेलर, जब बायर ने सेलर को प्रॉमिस किया दैट आई विल पे यू इन रिटर्न ऑफ योर कार, सेलर ने बायर को प्रॉमिस किया इन रिटर्न ऑफ कंसिडरेशन आई विल सेल माय कार. दोनों में से कोई भी ब्रीच करता है कि उसने पैसे तो दे दिए बट उसने कार सेल नहीं करी, कार का पोजेशन नहीं दिया, क्या वो स्यू कर सकते हैं? यस, बिकॉज वो एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसको करते समय बोथ द पार्टीज दे हैड एन इंटेंशन टू क्रिएट नॉट जस्ट अ रिलेशनशिप विथ ईच अदर बट अ लीगल रिलेशनशिप विथ ईच अदर. Not a domestic relationship, not a social relationship, but a legal relationship. So whenever there is an intention to create a legal relationship with each other, और उस legal relationship के intention के साथ आप जो agreement या promise करते हो, जो reciprocal promises करते हो, सिर्फ उसी agreement को क्या बोला जाएगा? Contract. कोई भी agreement जो out of natural love and affection, out of a domestic relationship होता है ना, husband and wife, they are in domestic relationship. We are in social relationship. I am your teacher, you are my student. हमारा एक social relationship है. There is no legal relationship, there is a social relationship. Husband and wife, domestic relationship. So क्या domestic या social relationships में आप लोग आपस में friends हो, आप लोग भी तो कई बार कई promises करते हो. क्या आपकी इंटेंशन है कि इस पर्सन ने, मैं इसको ये बुक तो दे रही हूं 2 दिन के लिए पढ़ने के लिए, मेरी बेयर एक्ट, अगर इसने ये लौटाई नहीं आई विल अप्रोच द कोर्ट, क्या ऐसा इंटेंशन होता है? नो. व्हाई? बिकॉज देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप. लीगल enforceability will be there only when the parties, the promisor and the promisee, they have an intention to create a legal relationship with each other, जो सेल में होता है, एजेंसी में होता है, मॉर्गेज में होता है, बेलमेंट एटसेट्रा. बट सोशल रिलेशनशिप्स में, सोशल अग्रीमेंट्स, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में जो डोमेस्टिक प्रॉमिसेस एवरी डे, ऐसे तो कितने बार हम अपने डे टू डे लाइफ में अपने फ्रेंड्स से, अपनी फैमिली से इतने सारे प्रॉमिसेस करते हैं, प्रॉमिसेस को ब्रेक भी करते हैं. हर चीज के लिए स्यू करने लग जाए. डू यू थिंक दैट इज पॉसिबल? दैट इज रैशनल? नो. इसीलिए एवरी अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट. ओनली दोज अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इन विच देयर इज अ लीगल एनफोर्सिबिलिटी. एंड व्हेन लीगल एनफोर्सिबिलिटी विल बी देयर? Whenever there is an intention to create a legal relationship with each other, not just a domestic or a social relationship. तभी बोला जाएगा कि ये agreement अब legally enforceable है. That is why it is a contract. Legally enforceable means कि दोनों में से अगर किसी भी पार्टी ने अपने promise को breach किया, violate किया, breach means violate, तो जो aggrieved person है वो sue कर सकता है defaulter. That is legally enforcing the contract against the other person, and it will only be there whenever there is an intention to create a legal relationship. तो क्या मैं enforceability के साथ यहाँ पे intention भी लिख सकती हूँ?